ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਏ ਫਿਊਲ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਏ ਬੋਮ ਕੈਲੋਰੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਕਿਸ ਬੋਮ ਕੈਲੋਰੀਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਮ ਕੈਲੋਰੀਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਊਲ ਦੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਔਰ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝਾਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਬੋਮ ਕੈਲੋਰੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਬੋਮ ਕੈਲੋਰੀਮੀਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੀਟ ਗੇਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੀਟ ਲੋਸਟ, ਰਾਈਟ? ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਨੀ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੀਟ ਗੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਹੀਟ ਗੇਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੀਟ ਲੋਸਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 2-3 ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲੋਰੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਬਰਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦਾ, ਰਾਈਟ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਊਲ ਬਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਵਨ ਇਜ਼ T1 ਐਂਡ ਅਦਰ ਵਨ ਇਜ਼ T2। T1 ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, T2 ਫਾਈਨਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਕੂਲਿੰਗ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ 3 ਹੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 3 ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਊਲ ਦੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। Now, so calculations and observation of this experiment. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਵਨ ਇਜ਼ weight of coal sample taken। ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਸਟ ਇਜ਼ weight of coal sample taken। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਸਪੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ X ਗ੍ਰਾਮ, ਰਾਈਟ? ਸੈਕਿੰਡ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ weight of water in calorimeter। weight of water in ਕੈਲੋਰੀਮੀਟਰ, ਰਾਈਟ? ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ W ਗ੍ਰਾਮ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਕੋਲਾ ਕਿੰਨਾ ਲਿੱਤਾ, ਵਾਟਰ ਕਿੰਨਾ ਲਿੱਤਾ ਕੈਲੋਰੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆਫ ਕੈਲੋਰੀਮੀਟਰ। ਥਰਡ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆਫ ਕੈਲੋਰੀਮੀਟਰ। ਕੈਲੋਰੀਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਟਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੀ ਆ? ਵਾਟਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੋਰੀਮੀਟਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ W, ਸਮਾਲ w ਗ੍ਰਾਮ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਵਾਟਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ? ਵਾਟਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆਫ ਐਨੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼, ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਲਿਖ ਲਈਏ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਟਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆਫ ਐਨੀ ਸਬਸਟੈਂਸ is defined as the amount of water in grams that will absorb same amount of heat as absorbed by the material
to raise its temperature by 1 degree centigrade. Right? What is the water equivalent? एक बार ये definition समझ लिए. वाटर इक्विवेलेंट ऑफ एनी सबसटेंस, कोई भी सबसटेंस है, मेरे को पेन है, हाँ ये पेंसिल है, कोई भी मैटल की बनी हुई चीज़ है, ठीक है, किसी भी सबसटेंस का वाटर इक्विवेलेंट ऑफ एनी सबसटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स। ठीक है, इत्थे इस गल का ख्याल देना है, अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स दैट विल एब्जॉर्ब सेम अमाउंट ऑफ हीट as absorbed by the material to raise its temperature by 1 degree centigrade। ठीक है, सो मान लो साढ़े को मटीरियल है, कोई भी मटीरियल है, नहीं ABC मटीरियल, असी इनू हीटअप किया, हीटअप करन ते इहदा टैंपरेचर 1 डिग्री तक वधाण वास्ते ये कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ठीक, सो दैट इज़ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 1 डिग्री तक, मान लो ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ 16 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਰਨਾ ਹੈ 17 डिग्री सेंटीग्रेड। 16 ਤੋਂ 17 डिग्री सेंटीग्रेड ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾइट, ਹੀਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬਡ, ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾइट। ठीक, सो व्हाट इज़ वाटर इक्विवेलेंट, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम, असी पानी का अमाउंट कैलकुलेट करना, दैट विल एब्जॉर्ब सेम अमाउंट ऑफ हीट, जोड़ा कि उन्नी ही हीट एब्जॉर्ब करे जिन्नी हीट इस मटीरियल ने एब्जॉर्ब की अपना टैंपरेचर 1 डिग्री राइज करने वास्ते। ठीक है, मतलब इस आ जोड़ा भी साडा मटीरियल है, इन्हें अपना टैंपरेचर 1 डिग्री राइज करने वास्ते कितनी हीट एब्जॉर्ब की है, उन्ने हिसाब दे नाल ਇਹ सबसटेंस किन्ने ग्राम वाटर के बराबर होगा, राइट। मान लो साढ़े को 5 ग्राम वाटर के बराबर होया, ठीक, 5 ग्राम वाटर है, अपना टैंपरेचर 1 डिग्री तक राइज करने वास्ते उन्नी ही हीट एब्जॉर्ब करता है जिन्नी इस मटीरियल ने अपना टैंपरेचर 1 डिग्री तक राइज करने वास्ते हीट एब्जॉर्ब की है, राइट। तो इस मटीरियल का वाटर इक्विवेलेंट होगा साढ़े को 5 ग्राम, राइट। मान लो साढ़े को कोई होर मटीरियल है, दिस वन, नैचुरली ਇਹਦਾ वेट डिफरेंट है, ਹੁਣ ਇਹਦੇ वेट डिफरेंट होने करके ये हीट भी इस मटीरियल नालों ज़्यादा एब्जॉर्ब करूँगा। सपोज ਇਹਦਾ भी टैंपरेचर असीं 16 ਤੋਂ 17 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। ठीक है, ਇਹਦਾ टैंपरेचर 1 डिग्री तक ਵਧਾਉਣ वास्ते सानू असीं ਇਹਨੇ कितनी हीट एब्जॉर्ब की। ठीक है, सो इन्नी ही हीट किन्ने ग्राम वाटर एब्जॉर्ब करूँगा अपना टैंपरेचर सेम 1 डिग्री तक राइज करने वास्ते, उन्ना अमाउंट असी कैलकुलेट कर लेना, तो वो इस मटीरियल का वाटर इक्विवेलेंट होगा। मान लो इस मटीरियल का जो वाटर इक्विवेलेंट है वो सपोज साढ़े को आ गया 8 ग्राम, राइट। तो जो वाटर इक्विवेलेंट है वो मटीरियल वाइज अलग अलग होंदा है, जोड़ा मटीरियल का भार घट होगा वह वाटर इक्विवेलेंट डिफरेंट घट होगा, जिसका भार ज़्यादा होगा वह वाटर इक्विवेलेंट ज़्यादा होगा, राइट। हुण असी सानू इत्थे वाटर इक्विवेलेंट की जरूरत क्यों पई है, क्यों सानू इस टर्म की जरूरत पई है स्टूडेंट्स, साडे कोल जिहड़ा है कैलोरीमीटर असी जिहड़ा लिता सीगा, ठीक है। सो कैलोरीमीटर जिहड़ा सीगा जिहड़ा दिस वन ऑपरेटर्स दिस वन साढ़े कोल कैलोरीमीटर जिहड़ा है दिस वन, ठीक। हुण जदों असीं इत्थे फ्यूल बर्न किया, जरूरी नहीं कि आह जिहड़ा आले दुआले पानी है इहो इहदे द्वारा छड्डी गई हीट नूं एब्जॉर्ब करूगा। साढ़े कोल आ जिहड़ा अपरेटस है ये भी तो गुड कंडक्टर हीट का है, नैचुरली वो इस फ्यूल द्वारा एमिट की हुई हीट नूं एब्जॉर्ब करूगा, राइट। असी ये चीज़ पहला कैलकुलेट करके रखनी है कि इस अपरेटस का भार कितना है, ये अपना जो असी इसका टैंपरेचर इनू हीटअप करते हैं, ये अपना टैंपरेचर 1 डिग्री तक राइज करने वास्ते कितनी हीट नूं एब्जॉर्ब करता है, राइट। सो ये चीज़ असी पहला कैलकुलेट करके रखनी है, उन्होंने असी की कहने हैं इस कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट, मतलब जिन्नी हीट इन्हें एब्जॉर्ब की ओह किन्ने ग्राम पानी दे बराबर
है कि किन्ने ग्राम पानी के बराबर होगा जे असी उस पानी का भी टैंपरेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज करना होवे, राइट। सो इस टर्म वास्ते असी जिहड़ी इस टर्म नूं असी डिक्टेट करते हैं, उहदे वास्ते असी वर्ड की यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। सो तुसी ये चीज़ जिहड़ी आ कैलकुलेट करके रखनी है, दैट इज़ द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। नैक्सट है साडे कोल हीट गेन। कोई भी चीज़ जिहड़ी आ हीट गेन जदों करदी आ, राइट। हीट गेन जिहड़ी आ ओहदे वास्ते एक फार्मूला हुंदा, दैट इज़ M इंटू S इंटू थीटा, राइट। वट इज़ M? दिस इज़ द मास ऑफ सबसटेंस, किसी भी सबसटेंस का मास। वट इज़ S? S इत्थे साडे कोल टर्म की है, S इज़ द स्पैसिफिक हीट। स्पैसिफिक हीट बिना अपनी फॉर्म चेंज किए वो चीज़ वध तो वध कितनी हीट एब्जॉर्ब कर सकती है, दैट इज़ स्पैसिफिक हीट। एंड वट इज़ थीटा हेयर? थीटा इज़ चेंज इन टैंपरेचर, चेंज इन टैंपरेचर। तो किसी भी चीज़ की द्वारा जिहड़ी हीट एब्जॉर्ब की जाती है, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ M इंटू S इंटू थीटा। हुण असी वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर कढ़ना है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर ये भी नैचुरली साडे कोल किहदे बराबर होगा, दैट इज़ स्मॉल w। एंड दिस स्मॉल w की है साडे कोल, वट इज़ दिस स्मॉल w? दैट इज़ M, that is water equivalent of calorimeter, that will be the product of M into S, right? What is M here? This is the mass of calorimeter, and this is specific heat of calorimeter, specific heat of calorimeter, right? Mass of calorimeter and this is the specific heat of calorimeter। इन्हां दोनों का जिहड़ा प्रोडक्ट है, that is equal to small w, that which is known as water equivalent of calorimeter, right? तो जिहड़ा साडे कोल ये चीज़ याद रखनी है तुसी, ऑब्जरवेशन दे विच साडे कोल जिहड़ा स्मॉल w दी वैल्यू है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ कैलोरीमीटर एंड स्पैसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, ये प्रोडक्ट के बराबर है, राइट। नैक्सट इस तो बाद जिहड़ी चीज़ असी होर नोट करनी है, इनिशियल टैंपरेचर ऑफ वाटर, दैट इज़ इनिशियल टैंपरेचर ऑफ वाटर, इनिशियल टैंपरेचर ऑफ वाटर। जदों असी कैलोरीमीटर जस्ट स्टार्ट ही किया उस टाइम उसका टैंपरेचर कितना सीगा, दैट इज़ T1 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। दैन 5 नंबर ते फाइनल टैंपरेचर ऑफ वाटर, फाइनल टैंपरेचर ऑफ वाटर, दैट इज़ T2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, T2 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड देन चेंज इन टैंपरेचर, चेंज इन टैंपरेचर, टैंपरेचर चेंज इन टैंपरेचर ये असी काहदे नाल प्रेजेंट करते हैं, थीटा, एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1, right? So that will be the change in temperature, T2 minus T1 degree centigrade. Now suppose the calorific value of fuel, suppose असी अपने को मान लीए है, suppose the calorific value of fuel, मान लो तुसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, C कैलोरी पर ग्राम, असी अपने को एज्यूम कर लिया, राइट। नाउ ये तो साडे कोल ऑब्जरवेशन पार्ट आ गया सारा, ऑब्जरवेशन जिहदे च असी फ्यूल का मास, वाटर का मास, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, इनिशियल टैंपरेचर, फाइनल टैंपरेचर, चेंज इन टैंपरेचर एंड फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू जिहड़ी है नोट की है, ठीक है। सो इस तो बाद आप जिहड़ी चीज़ कैलकुलेट करनी है वो मैं बोर्ड की दूसरी साइड यूज़ करूँगी, मैनू रब ही करना पैना इनू, ये चीज़ां याद रखियो तुसी, ठीक है। सो नाउ वट वी हैव टू कैलकुलेट हेयर, असी हुण जिहड़ी चीज़
कैलकुलेशंस करनी है, कैलकुलेशंस apply the principle of calorimetry. Right? What is the principle of calorimetry? That is heat gained is equal to heat lost. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है। सो हीट गेंड जो असी फ्यूल ਨੂੰ बर्न किया ਕਿਹੜੀਆਂ चीज़ ने हीट गेन की, एक वाटर ने एक कैलोरीमीटर ने। सो हीट गेन किहदे बराबर होगी, हीट गेंड इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ हीट गेंड बाय वाटर प्लस heat gained by calorimeter। जिन्नी वाटर ने हीट गेन की, जिन्नी कैलोरीमीटर ने हीट गेन की, उन्होंने दोनों का प्लस करना है। हुण हीट गेन का असी एक फार्मूला लिखा सी, हीट गेंड एक किहदे बराबर होंदी है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू स्पैसीफिक हीट इंटू चेंज इन टैंपरेचर दैट इज़ हीट। ठीक है, हुण दो चीज़ां हीट गेन करदी हैं, एक वाटर दे कैलोरीमीटर। नैचुरली इन्हां दा ये भी इहदे बराबर ही इस फार्मूले नाल असीं कड्ढनी है। पहलां असीं लिखांगे हीट गेन, आ चीज़ कढ ली आपां वाटर वाली, हीट गेन्ड बाय वाटर, हीट गेन्ड बाय वाटर that is m into s into theta। what is m, mass of water, that is capital W। ठीक है, mass of water capital W। s specific heat of water 1 calorie, वाटर कितनी हीट मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है 1 कैलोरी। एंड चेंज इन टैंपरेचर, इनिशियली वाटर का टैंपरेचर T1 सी, फाइनल T2, तो थीटा की वैल्यू की आऊगी T2 माइनस T1। सो दैट इज़ द हीट गेन्ड बाय वाटर। ये इक्वेशन याद रखनी है तुसी, राइट। दैन अगली चीज़ हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर, हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर ने हीट कितनी गेन की है, अगेन m इंटू एस इंटू थीटा। मास ऑफ कैलोरीमीटर दैट इज़ mass of calorimeter into specific heat of calorimeter into theta की है change in temperature। हुन m into s mass of calorimeter और specific heat of calorimeter, इस चीज़ नूं स्टूडेंट्स आपां small w दे बराबर लिखिया सीगा, राइट, small w ग्राम के बराबर लिखिया सी। ठीक, तो असी इस इक्वेशन को इदां लिख लिया small w into theta। आ इक्वेशन, एक आ इक्वेशन आ गई 1 लिख लो इनू, एक आ इक्वेशन आ गई इनू 2 लिख लो। ठीक है, हुण इन्हां दोनों इक्वेशन को एडअप कर लो ताकि साडे कोल टोटल हीट एक गेंड आ जाए। ठीक है, सो इन्हां 1 और 2 इक्वेशन को प्लस कर लिए। ठीक, एड इक्वेशन 1 एंड 2 एट इक्वेशन 1 एंड 2। 1 ते 2 इक्वेशन दोनों को प्लस कर लो, हीट गेन्ड बाय वाटर एंड हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर। हीट गेन्ड बाय वाटर साढ़े कोल कितनी आ गई, दैट इज़ दैट वैल्यू इज़ कैपिटल W 1 कैलोरी नूं असीं मैंशन नहीं करांगे इत्थे, कैपिटल W इंटू T2 माइनस T1, राइट। then heat gained by calorimeter that is small w। हुण थीटा की है साढ़े कोल, what is theta here, that is theta की है साढ़े कोल w T2 माइनस T1, right। so plus small w T2 माइनस T1। हुण इन्हां दोनों इक्वेशन जो T2 माइनस T1 सैपरेट आउट कर लो, साढ़े कोल इक्वेशन की आ गई, सो कैपिटल W प्लस
ਸਮਾਲ w T2 ਮਾਈਨਸ T1 ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਕੈਲੋਰੀ ਹੀਟ ਆ ਗਈ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲ ਹੀਟ ਗੇਨ। ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਲੋਸਟ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਫਿਊਲ ਦੇ ਬਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਲੋਸਟ ਆਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੀਟ ਲੋਸਟ ਰਾਈਟ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗੀ? ਹੀਟ ਲੋਸਟ ਬਾय ਬਰਨਿੰਗ x ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਫਿਊਲ ਦੇ x ਗ੍ਰਾਮ ਬਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਲੋਸਟ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਈਟ। x ਗ੍ਰਾਮ ਬਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫਿਊਲ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ C ਕੈਲੋਰੀ। ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਫਿਊਲ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ C ਕੈਲੋਰੀ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ x ਗ੍ਰਾਮ ਬਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ? x into C ਕੈਲੋਰੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਮੰਨ ਲਈਏ।